Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about the frequency spectrum of amplitude modulated wave. That is basically frequency domain representation of amplitude modulation or amplitude modulated wave. So as we seen, basically the amplitude modulated wave or basically output of amplitude modulator consists of three components. One is the original carrier signal at frequency fc, that is one is at frequency fc, which is nothing but our original carrier. Okay, one component, that is the frequency fc, which is our original carrier, right? Okay, another component at the frequency greater than this original carrier frequency, that is at the frequency fc plus fm, which is basically known as a upper sideband. Okay, and another third component at the frequency lower than carrier frequency, that is fc minus fm, which is basically known as a lower sideband, Okay, carrier signal has amplitude of EC. ये जो component है इसका amplitude था EC. This upper sideband has amplitude of m by 2 EC, where m is the modulation index, and lower sideband has the amplitude of same to same, that is m by 2 EC. So upper sideband as well as lower sideband both has the same amplitude, that is m by 2 EC. And we also concluded the lectures with the very important formula, that is bandwidth of AM signal. So bandwidth of AM is basically the 2 times maximum modulating signal frequency. मतलब हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ मिल जाएगी. ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा AM है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसमें 2 साइड बैंड है और एक कैरियर सिग्नल है, ओरिजिनल कैरियर है, इसीलिए उसको 2 साइड बैंड है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल साइड बैंड, DSB डबल साइड बैंड, और कैरियर भी अवेलेबल है, हेंस इट इज नोन एज अ फुल कैरियर. It is known as a double sideband full carrier, DSB FC. DSB stands for double sideband, FC stands for full carrier. So this type of amplitude modulation is known as a double sideband full carrier. So standard amplitude modulation is basically known as a DSB FC modulation, double sideband full carrier modulation. Now today we will discuss about one important concept of amplitude modulation, that is the power distribution in AM or power of AM signal, simply known as a power of AM or power contribution in AM. तो बच्चों हमने देखा कि जो DSB FC फॉर्म है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का DSB FC फॉर्म है, दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर, उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट है. ओके, कौन कौन सा, एक कैरियर जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है और इसका एम्पलीट्यूड करस्पॉन्डिंग कितना है, EC. मतलब एक कंपोनेंट होगा जिसका एम्पलीट्यूड EC है, दूसरा कंपोनेंट FC प्लस FM है, ओके, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, m by 2 EC, ओके, और तीसरा कंपोनेंट है FC माइनस FM, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, कितना एम्पलीट्यूड है, m by 2 EC. तो बच्चों ये वोल्टेज लेवल है, ये वोल्टेज लेवल है, ये भी वोल्टेज लेवल है, और ये भी वोल्टेज लेवल है. तो जब भी ये वोल्टेज लेवल, ओके, मतलब ये जो कंपोनेंट है वो हम रजिस्टर थ्रू पास करेंगे, मतलब ये वोल्टेज लेवल रजिस्टर को मिलेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पावर. क्या प्रोड्यूस करेगा, पावर. सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन लोड, मतलब जो रजिस्टर होता है एंटीना थ्रू हम सिग्नल को जब ट्रांसमिट करेंगे बेसिकली, है ना,
AM सिग्नल को हम एंटीना से ट्रांसमिट करेंगे तो ये जो एंटीना हमारा है, सपोज मान लो कि ये मेरा एंटीना है, ओके, तो एंटीना का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ओके, सपोज मान लो कि इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये वोल्टेज जब ये रेजिस्टेंस को मिलेगा तो कितना पावर डिसिपेशन होगा ये रजिस्टर में, ओके, तीनों कंपोनेंट की वजह से पावर डिसिपेशन होगा, मतलब ये भी इसका भी पावर होगा, इसकी वजह से भी पावर होगा, इसकी वजह से भी पावर होगा और इसकी वजह से भी पावर होगा। सो टोटल पावर कितना हो गया? सो टोटल पावर ऑफ AM इज नथिंग बट PT इज इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर, पावर ड्यू टू कैरियर, प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड जिसको मैं डिनोट करता हूं PUSB से, प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। सो टोटल पावर किस किस की वजह से होगा? पावर कंट्रीब्यूटेड बाय कैरियर, का पावर कंट्रीब्यूटेड बाय अपर साइड बैंड प्लस पावर कंट्रीब्यूटेड बाय लोअर साइड बैंड। सो दिस इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन AM। सो टोटल पावर जो होता है AM वो तीन कंपोनेंट के पावर का सम है, मतलब वो टोटल पावर AM का है वो तीन कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन कौन में? एक कैरियर सिग्नल का पावर, दूसरा अपर साइड बैंड, तीसरा लोअर साइड बैंड। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का पावर फाइंड करेंगे और तीनों के पावर को हम सम कर देंगे तो मुझे AM सिग्नल का टोटल पावर मिल जाएगा, AM सिग्नल का टोटल पावर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, जो FC है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का जो पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है? तो पावर, अगर मुझे वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। बट ये V कौन सा होगा? RMS होगा, VRMS। मतलब जो ये EC जो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने हमारे जो तीन साइड बैंड थे, सपोज ये साइड बैंड अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी FC थी और यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल था वो EC था। तो EC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। लेकिन यहाँ पे हमें पावर फाइंड करने के लिए कौन सा वोल्टेज लेना पड़ेगा? RMS। मतलब मुझे EC नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ये पीक वैल्यू से मुझे RMS वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड दैट RMS कैरियर वोल्टेज विल कंट्रीब्यूट टू द पावर। तो ये पीक वैल्यू से मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको RMS में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो RMS वोल्टेज की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे पावर कैरियर का मिल जाएगा। तो पीक वैल्यू से RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो आपको आई होप कि आपको वो आता होगा और आपको पता होगा। सो लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड RMS वैल्यू फ्रॉम दिस पीक वैल्यू। तो VRMS फॉर्मूला ये है कि RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट टू। तो यहाँ पे VP की जगह पे क्या EC है, तो ये क्या हो जाएगा? ERMS क्या हो जाएगा? ERMS दैट इज RMS वैल्यू ऑफ द कैरियर वोल्टेज दैट इज द EC डिवाइडेड बाय रूट टू। तो पावर कितना हो जाएगा? PC दैट इज पावर ऑफ द कैरियर क्या हो जाएगा? PC इज नथिंग बट ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ERMS की वैल्यू क्या है? EC बाय रूट टू। तो ERMS की जगह में मैं EC बाय रूट टू लिखूंगा तो क्या होगा? लेट मी इरेज दिस सो आई कैन गेट द स्पेस। ओके, सो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? PC इज इक्वल टू ERMS स्क्वायर डिवाइड बाय R है और ERMS की वैल्यू क्या है? EC डिवाइड बाय रूट टू। तो कैरियर पावर क्या हो जाएगा? PC इज इक्वल टू EC स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, तो डिवाइडेड बाय 2R। सो दिस इज कैरियर ऑफ द पावर ऑफ द कैरियर कंपोनेंट। जो हमारा AM में जो कैरियर कंपोनेंट है एट फ्रीक्वेंसी FC उसका पावर कितना होगा? दैट इज EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो हमें कैरियर का पावर मिल गया, EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। सिमिलरली हम अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का भी पावर फाइंड कर सकते हैं। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का पावर कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें उसका पीक एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। तो दोनों का पीक एम्पलीट्यूड सेम है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का, तो मतलब दोनों का पावर भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। दोनों का पावर भी क्या होगा? सेम टू सेम। तो अपर साइड बैंड पावर दैट इज PUSB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीक एम्पलीट्यूड दैट इज EUSB स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब USB का एम्पलीट्यूड क्या है? दैट इज EUSB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्या है? M/2 EC। अब ये पीक एम्पलीट्यूड हमें कौन सा चाहिए? RMS चाहिए। तो इसी की जगह पे क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? इसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ERMS। तो ERMS क्या हो जाएगा?
EC डिवाइडेड बाय √2, तो ये हो जाएगा EC डिवाइडेड बाय √2, बिकॉज RMS वैल्यू चाहिए हमें वोल्टेज की। तो EUSB क्या हो जाएगा, MEC डिवाइड बाय 2√2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MEC डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा और इसके डिवाइड बाय R करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेसिकली हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू बेसिकली, लेट मी रफ इट, पावर क्या हो जाएगा अपर साइड बैंड का, पावर कितना हो जाएगा अपर साइड बैंड का, दैट इज अ PUSB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म का पूरा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो दैट इज द m स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू R, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R, okay, m square EC square divided by 8R. So upper side band has power of m square EC square divided by 8R. Similarly, lower side band has also same power, that is a PLSB, because upper side band lower side band का amplitude same है, तो PLSB is equal also m square EC square divided by 8R. तो आप देख सकते हैं m square EC square divided by 8R. ओके, तो हमें तीनों कंपोनेंट का पावर मिल गया, कैरियर का पावर मिल गया, USB का पावर मिल गया और LSB का पावर मिल गया। तो तीनों का सम कर दो, तो तीनों का सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, PT इज इक्वल टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB, PT इज इक्वल टू PC की वैल्यू क्या है, PC का पावर कितना है बच्चों, PC इज इक्वल टू कितना है, दैट इज द EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, दैट इज द EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R है, सो दैट इज द EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R प्लस USB का पावर कितना है, दैट इज द m स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R प्लस लोअर साइड बैंड का सेम टू सेम, दैट इज प्लस m स्क्वायर EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R कॉमन ले ले, तो इससे अगर मैं EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R कॉमन ले लूँ तो क्या निकलेगा, EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके, और यहाँ पे भी m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बचेगा, तो दैट इज द m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, दैट इज m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये जो है EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R वो क्या है, दैट इज अवर कैरियर पावर, PC, EC स्क्वायर डिवाइड बाय 2R क्या है, कैरियर पावर है, EC स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, तो EC स्क्वायर डिवाइड बाय 2R की जगह में PC लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, दैट इज पावर इन AM सिग्नल, सो टोटल पावर इन AM सिग्नल इज गिवन एज PT is equal to PC 1 plus m square divided by 2. Okay, so you can see the total power of the amplitude modulated wave depends on modulation index m. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बेस एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी मैक्सिमम है, तो ये अपने दिमाग में फिट कर दो, इवन नॉट फॉर अवर थियरी एग्जाम, इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर बीटेक आप बी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे वहीं पे भी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, समझ में आ गया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के पावर का। ओके, सो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर। ओके, टोटल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, तो जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा टोटल पावर भी इंक्रीज होता जाएगा। नाउ दिस अ पावर स्पेक्ट्रम फॉर
डबल साइड बैंड फुल कैरियर एएम वेव, तो आप देख सकते हो कैरियर सिग्नल का पावर कितना है, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। अपर साइड बैंड का पावर कितना है, M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4PC, एंड लोअर साइड बैंड का भी पावर कितना है, M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4PC। सो बेसिकली दिस इज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर का प्लॉट है। दिस इज नोन एज अ पावर स्पेक्ट्रम फॉर AM DSB FC वेव। नाउ हमने यहाँ पे पावर कैलकुलेशन किया, अब हम करंट कैलकुलेशन करते हैं। AM में करंट का कैलकुलेशन करते हैं कि AM में करंट कितना होता है और व्हाट इज द करंट रिलेशन इन AM। सो बेसिकली हमें पावर रिलेशन पता है तो हम करंट रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज पावर एंड करंट का क्या रिलेशन है। तो पहले मैं पावर का रिलेशन लिखता हूं, दैट इज PT इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट PC 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो पावर एंड करंट का रिलेशन तो हमें पता है, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर, सॉरी P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर, ये रिलेशन हमें पता है। तो PC को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, PT डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब PT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज PT इज इक्वल टू टोटल करंट स्क्वायर इंटू R, सो दैट इज IT स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय कैरियर करंट, दैट इज IC स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। RR कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, IT स्क्वायर डिवाइडेड बाय IC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो IT डिवाइडेड बाय IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल करंट क्या मिलेगा, IC को इस साइड ले लो, so that is IT is equal to, there is a current relation in AM, that is IT is equal to IC square root of 1 plus M square divided by 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिले विथ रिस्पेक्ट टू AM। वन इज द पावर of AM, that is PT is equal to PC 1 plus M square by 2, and current relation in AM, that is the IT is equal to IC square root of 1 plus M square divided by 2। These are very similar to each other, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पावर रिलेशन फाइंड किया AM का और करंट रिलेशन भी फाइंड किया। दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, दोनों बेस्ड न्यूमेरिकल मतलब एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब पता चल गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे, we'll discuss other aspect of this amplitude modulation in our next video lecture. Thank you very much.